لاہور موٹروے زیادتی کیس میں سامنے آنے والے نئے ملزم عباس نے گرفتاری دے دی ہے۔ مزید شیخو پورہ سے نمائندہ نیوز علی عمران ہمارے سے موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں جی ملزم عباس نے کیا گرفتاری کہاں سے دی ہے؟ جی بالکل، آج اس موٹروے سیالکوٹ گجرانوالہ موٹروے کیس میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے۔ اس میں آج کوٹ پنڈی داس کے علاقے میں ہی جو ہے وہ عباس جو گزشتہ روز ملزم وقار الحسن پیش ہوا تھا، اس کا بہنوئی یہ تھا جس کا نام اس کے بیان کے بعد، جو وقار الحسن کے بیان کے بعد منظر عام پر آیا تھا، آج اس نے جو ہے وہ گرفتاری دے دی ہے اور اس نے یہ ویڈیو بیان بھی جاری کیا ہے کہ میرا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں، میرا صرف اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوستانہ تعلق تھا۔ ہم ایک جگہ پہ جو ہے وہ اسٹیل مل میں ایز اے ورکر کام کرتے تھے، جہاں سے میرا اس کا تعلق بنا، اس کے علاوہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کے اداروں سے جو ہے وہ مجھے انصاف ملے گا، اس لیے جو ہے وہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہوں۔ جی اچھا، یہ بتائیے گا علی عمران کے اس عباس نامی ملزم کے اوپر الزام کیا عائد کیا گیا ہے؟ جی عباس نامی ملزم کے اوپر یہ الزام عائد کیا گیا تھا جب ملزم وقار الحسن بھی کل تھانہ ماڈل ٹاؤن سی آئی اے میں پیش ہو کر یہ بیان دیا تھا کہ میرے جو یہ نمبر ہے یہ میرے بہنوئی کے پاس چل رہا تھا جس کا نام عباس ہے، میرا اس واقعے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پولیس نے ملزم عباس کی جو ہے وہ تلاش شروع کر دی تھی، لیکن اس کی گرفتاری جو ہے وہ متضاد اطلاعات تھی کہ کبھی اس کا یہی کہا جا رہا تھا کہ گرفتار ہو گیا ہے، کبھی نہیں، لیکن آج یہ سارا معاملہ جو ہے وہ منظر عام پر آیا ہے۔ اس عباس نے جو ہے وہ خود اپنی جو ہے وہ گرفتاری دے دیا ہے اور اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ میرا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں، میرا صرف اس کے ساتھ کچھ جو ہے وہ کام ایک جگہ پہ اکٹھے کام کرنے تک کا جو ہے وہ تعلق تھا، اس وجہ سے میرے اس کے ساتھ کچھ روابط تھے۔ جی ٹھیک ہے علی عمران، یہ بتائے گا کہ عباس نے اب جرم ماننے سے اپنا انکار کر دیا، تو اب پولیس کے حوالے سے نیکسٹ پیش رفت کیا ہوگی اس حوالے سے؟ جی میں سوال سمجھ نہیں پایا۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ عباس نے اپنا جرم ماننے سے انکار کر دیا ہے، تو اب پولیس کے حوالے سے نیکسٹ پیش رفت کیا ہوگی اس معاملے پر؟ جی عباس نے جو ہے وہ اعتراف جرم کرنے سے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے اور خود کو پیش کر کے پولیس کے حوالے کیا ہے۔ پولیس اسے اس وقت جو ہے وہ لیکن نامعلوم مقام پر جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے، مزید جو ہے وہ تفتیش جاری ہے اس میں۔ اچھا علی عمران، اس سے پہلے وقار الحسن کو اطلاعات کے مطابق خاتون نے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا، وقار الحسن نے بھی اپنی گرفتاری خود دی تھی اور اب وقار الحسن کے بعد اس ملزم عباس نے بھی اپنی گرفتاری خود دی ہے، اس لائن پر تفتیش کر رہی ہے پولیس؟ جی ویس بالکل، یہ جب وقار الحسن نے بھی اپنی گرفتاری جو خود ہی دی تھی اور آج اس کے بہنوئی عباس نے بھی جو ہے وہ اس اپنی گرفتاری خود دے دی ہے۔ اہل علاقہ کے مطابق بھی جو یہ فیملی ہے وقار الحسن فیملی، یہ شریف لوگ ہیں، ان کا اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے اور وقار الحسن جو ہے وہ قلعہ ستار شاہ میں ایک موٹر سائیکل مکینک کی جو ہے وہ دکان چلاتا تھا۔ اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ پولیس کی تفتیش پر جو ہے وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے کہ اتنا اہم کیس ہے اور اس انویسٹیگیشن میں جو ہے وہ ملزمان جن کو جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے ان کا اس معاملے سے ابھی تک جو ہے وہ کوئی تعلق ثابت ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ جی اچھا علی عمران، یہ بھی بتائیے گا کہ عباس نے کس تھانے میں پہنچ کر اور کب گرفتاری دی اور اس کی کیا آفیشل سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لی گئی ہے؟ جی بالکل، عباس نے جو ہے وہ اپنے ہی علاقے میں اپنے گھر پر جو ہے وہ اپنے عزیز و اقارب کے درمیان رہ کر یہ جو ہے وہ گرفتاری دی ہے، خود کسی تھانے میں پیش نہیں ہوا۔ تھانہ فیکٹری ایریا کو جو ہے وہ عباس کے حوالے سے کال کی گئی اور گھر بلا کر جو ہے وہ اس کو خود پیش کروایا گیا اور اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ پولیس کے سامنے سرنڈر کیا اور اس کے عزیز و اقارب کی جانب سے جو ہے وہ ویڈیو اس کی جو ہے وہ میڈیا تک پہنچائی گئی ہے، جاری کی گئی ہے، جس میں وہ اس معاملے کے حوالے سے بتا رہا ہے۔ جی اچھا علی، آپ نے وقار الحسن کے متعلق بتایا کہ ان کی فیملی کی شہرت اچھی ہے علاقے میں، کیا عباس اور اس کے خاندان والوں کی شہرت بھی اچھی ہے؟ جی بالکل، یہ بیسیکلی تمام جو ہے ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی فیملی ہے، لیکن یہ تمام ورکر ہیں
कुछ लोग छोटी मोटी दुकानें चलाते हैं और कुछ जो है वो ये एरिया का मैं आपको बताऊं कि ये इस एरिया के इतराफ में जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वो इनके तमाम जो जितने भी फैमिलीज के लोग हैं, जो भी लड़के हैं, वो इन फैक्ट्रीज में जो है वो एज ए वर्कर काम करते हैं। आप हमारे साथ ही रहेगा अली इमरान। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप जो मनाज़र देख सकते हैं वो एक्सक्लूसिव मनाज़र हैं कि किस तरह से कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्ज़िम अब्बास को गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं। मुल्ज़िम अब्बास ने खुद गिरफ्तारी दी है। उसका ये कहना है कि उसका इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं, वो वक़ारुल हसन से राब्ते में ज़रूर था, लेकिन ये राब्ता सिर्फ और सिर्फ कारोबारी नौयत का था और वो किसी भी जुर्म में शरीक नहीं है। इससे पहले वक़ारुल हसन की तस्वीर भी आबिद के साथ पुलिस की जानिब से शेयर की गई थी, जिस पर इल्जाम आयद किया गया था कि ये मुल्जिम है, और वक़ारुल हसन ने बाद में खुद गिरफ्तारी दी, जिसके बाद खातून ने भी वक़ारुल हसन को पहचानने से इनकार कर दिया। हमारे नुमाइंदे अली इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। अली इमरान, ये बताइएगा कि अहले इलाका ने तो बड़ी मनफी राय का इजहार किया है आबिद के मुतालिक, क्या अब्बास के मुतालिक अच्छी राय है? जी बिल्कुल, अब्बास के हवाले से भी जो है वो अभी कल जब इसका नाम मंजर आम पर लाया गया पुलिस की जानिब से, तो अब्बास के हवाले से भी जब जो है मीडिया ने अहले इलाका से पूछने की कोशिश की, तो उनका यही कहना था कि ये लोग जो है वो अच्छी शोहरत रखते हैं, इनके साथ कभी इस तरह के मामला जो है वो देखने में नहीं आए, और न जाने क्यों पुलिस की जानिब से जो है वो इन्हें इस केस में जो है वो शामिल किया जा रहा है। जी, और अली इमरान, इतलात के मुताबिक ये जो मुल्जिम अब्बास है, इसके नाम पर थी वो रजिस्टर्ड सिम जो कि वक़ारुल हसन इस्तेमाल कर रहा था? जी बिल्कुल, ये सिम जो है वक़ारुल हसन के नाम पर थी। जो मुल्जिम, तो दूसरा मुल्जिम इसका वक़ारुल हसन का बहनोई है अब्बास, जिसने अभी जो है वो खुद को सरेंडर किया है। ये सिम वक़ारुल हसन के नाम पर थी और ये इस्तेमाल कर रहा था, जिस पे आप इसके अब्बास के और जो आबिद है मुल्जिम, इसके आपस में ताल्लुकात थे। ये अब्बास की जानिब से इसको उसके मुताबिक, उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक के 10 से 12 रोज कबल जो है वो इसने इसी नंबर से जो है वो आबिद को कॉल की थी, जिस बिना पे उसे जो है वो इस केस में इन्वॉल्व किया जा रहा है। इसके अलावा अब्बास का ये कहना है कि मेरा उसके साथ कोई राब्ता नहीं, वो सिर्फ एक स्टील मिल में एक जगह पर काम करते थे, जिसकी बिना पर जो है वो उसके साथ ताल्लुक थे। और अब्बास का ये भी कहना था कि ये जो मेरा फोन है, इससे दीगर जो वहां पर काम करने वाले लड़के हैं वो भी लेके कॉलें जो है वो मेरा नंबर इस्तेमाल करते थे, कॉलें कर कभी कभार जो है वो भी कॉल करके इस्तेमाल कर लेते थे। और इसी तरह जो है वो आबिद ने भी 1-2 मरतबा मेरे नंबर से कॉलें की, और आबिद को भी जो है वो मैं अपने नंबर से भी कॉलें करता रहा हूँ। तो इसी बना पर जो है वो हमें इस केस में जो है इन्वॉल्व किया जा रहा है। इसके अलावा इस केस के साथ हमारा जो है वो कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा अली इमरान, आपकी या मीडिया के दीगर लोगों की बात हुई है अब्बास के अहले खाना से? जी, अभी ये जब कल भी जो है वो मीडिया कोशिश करता रहा है, लेकिन उस वक्त जो है वो इन फैमिली से जो है वो राब्ते नहीं हो पा रहे थे। लेकिन आज अब से कुछ ही देर कबल जब अब्बास ने जो अपने आप को सरेंडर किया, अपनी गिरफ्तारी दी है, तो वहाँ पर इसके सारे जो फैमिली के लोग हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो कोशिश करेंगे कि इनके जो फैमिलीज के दीगर भी जो लोग हैं, इनके व्यूज भी लेकर जो है वो अपने नाज़रीन तक पहुंचाए जाएं। और जब अब्बास को वहां से गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था, तो उसने भी मीडिया से बात करने की या मीडिया ने उससे बात करने की कोई कोशिश नहीं की? जी, अभी तक जो है वो निश्चित है, क्योंकि सबसे पहले ये अहम खबर थी, हमने अपने नाज़रीन तक पहुंचाना जो है वो इसको लाजमी समझा। अभी जो है वो इन अहले खाना से भी जो है वो गुफ्तगू मीडिया के कुछ लोग करेंगे, और ये इनसे भी जो है वो मजीद बात करके जो है वो मंजर आम पर लाई जाए। अच्छा अली इमरान, आप हमारे साथ ही रहेगा, नाज़रीन को बताएं कि मुल्जिम अब्बास ने इतलात के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद जो बात की, आई आपको दिखाते हैं। मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा, मैं उम्मीद कर रहा मेरे पाकिस्तान की पुलिस मेरे नाल इंसाफ करेगी, और वो मेरी भैन जिहदे नाल जास्ती हुई वो भी मैं उम्मीद करना कि मेरे नाल इंसाफ करेगी। ते मेरियां अपनियां 3 बेटियां जवान ने जिन्हां दा मैं आप सहारा, ते मैं उम्मीद करना मेरे नाल इंसाफ किया जाए। अच्छा,
ਅੱਛਾ ਬਾਸ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਬਦ ਮੁਜਰਮ ਫਰਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਬਤਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕੰਮ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਕੰਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਸਟੀਲ ਮਿਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਟੀਲ ਮਿਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਟੀਲ ਮਿਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ? ਇਹ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਕਦੋਂ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ 10-12 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲ ਕਦੋਂ ਕੁ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਹੀ ਕਰਾਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਸੀ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵਕੂਵੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੂੰ ਉਸ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਕੂਵਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਂ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੱਕ, ਅਲੀ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਲੀ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਦਰੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਕਿਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗਿਆ ਹੀ नहीं बिल्कुल? नहीं। मुल्जिम अब्बास ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। उसका ये कहना है कि वो स्टील मिल में काम करता था और उसका मुल्जिम आबिद के साथ सिर्फ और सिर्फ काम का ताल्लुक था। उसने इस सारे मामले को देखा और जब उसको पता चला कि उसका नाम आया है तो उसने अपनी सफाई देने का फैसला किया। मुल्जिम अब्बास ने इस तवक्को का इजहार किया कि उम्मीद है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे उसके साथ इंसाफ करेंगे। उसकी अपनी भी 3 बेटियां हैं और जिस बहन के साथ ज्यादती हुई है मोटरवे पर, उन्हें इस वाक़े का बेहद अफसोस है और वो पुलिस के सामने पेश होकर पुलिस को अपनी बेगुनाही के बारे में बताएंगे। उन्होंने ये कहा कि उनका मुल्जिम आबिद से जो राब्ता हुआ था उसमें मुल्जिम आबिद ने उसे कॉल करके बड़ी ईद से पहले ये पूछा था कि अब फैक्ट्री कब खुलनी है, जिसके बाद वो मेरी दुकान पर आया था। उसने कहा था कि बाहर आकर मेरी बात सुनो। उसे ये भी कहा था कि मैंने अपनी मोटरसाइकिल ठीक करवानी है और उसके बाद वो वहां से चला गया था और उसके बाद मुल्जिम आबिद से अब्बास का कोई राब्ता नहीं हुआ था। ये कहना था अब्बास का। उसने मुकम्मल तौर पर सेहत जुर्म से इनकार किया है और जितना कॉन्फिडेंट वो लग रहा था, जिससे पहले वकारुल हसन ने भी अपने आप को खुद गिरफ्तारी दी और बाद में खातून ने उसको पहचानने से इनकार किया। अब्बास ने भी खुद को अपनी आप गिरफ्तारी के लिए पेश किया। अगर खातून उसे भी पहचानने से इनकार कर देती है तो पुलिस के तफ्तीशी निजाम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा कि सिर्फ शक की बुनियाद पर लोगों की तस्वीर किस तरह से पब्लिक की जा सकती है। एक मरतबा फिर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अली इमरान से। अली इमरान, ये बहुत अहम वीडियो है जो हमने अपने नाज़रीन के साथ शेयर की। इस वीडियो के बाद मुल्जिम अब्बास ने गिरफ्तारी भी दे दी। इस वीडियो के बाद लोगों का वहां पर क्या कहना था, लोगों की अक्सरियत की क्या राय थी अब्बास के मुताल्लिक? जी बिल्कुल, ये गिरफ्तारी देने से कुछ टाइम कबल जो है वो ये वीडियो रिकॉर्ड की गई उसके अहले खाना की जानिब से। उसके बाद इसने जो है वो पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। तो वहाँ पर जो अहले इलाका है और इसके अजीज़ो अकरबा है, उनका यही कहना था कि हम बिल्कुल बेकसूर हैं, जिसका सबूत यह है कि हम खुद ही अपने आप को जो है वो पुलिस के सामने पेश कर रहे हैं। कल वकारुल हसन ने जो है वो अपने आप को पुलिस के सामने खुद सरेंडर किया और आज अब्बास ने भी जो है सरेंडर किया है। हम खुद बेटियों वाले हैं, हम इस मामले पर बेहद जो है वो गमगीन है। इस मामले से हमारा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। पुलिस बिल्कुल बेजा जो है वो हमें इस मामले में घसीट रही है और हमारा यही इल्तिजा है कि हमें जो है वो इंसाफ फराहम किया जाए। इस बेस से ही जो है वो हमने अपने आप को जो है वो सरेंडर किया है। अच्छा अली इमरान, ये भी बताइएगा कि कितने बजे सरेंडर किया अब्बास ने खुद को पुलिस के आगे? आज ये अब से जो है वो तकरीबन 1 घंटा कबल 11:30 पौने 12 बजे के करीब जो है वो इसने अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर किया है और गिरफ्तारी दी है।
जिससे कुछ देर कबल जो है वो इसके दीगर रिश्तेदारों की जानिब से ही जो है वो इस वीडियो को रिकॉर्ड करके जो है वो चंद मीडिया के दोस्त लोगों को जो है वो भिजवाई गई ताकि इस मामले को जो है वो मीडिया पर के सामने भी जो है वो लाया जा सके। अच्छा पुलिस की जानिब अली, ये भी बताइएगा कि जिस जगह पर ये घर है यहाँ से मोटरवे कितनी दूर है जिस जगह पर ये वाकया पेश आया, क्योंकि हम सुन सकते हैं कि वीडियो में एक शख्स जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था उसने अब्बास से सवाल किया कि तुम क्या किसी और काम से भी उस दिन वाकये वाले दिन वहां पर गए हो? जी बिल्कुल, ये जो जहां पर ये इलाका वाक़या है ये एक जानिब जो है वो इसके लाहौर रोड है और दूसरी जानिब तक इसके जो है वो मोटरवे है। इन दोनों मेन रोड्स के जो दरमियान में ये इलाका वाक़या है, तकरीबन इसका जो एरिया है वो 4 से 5 किलोमीटर बनता है। लेकिन अहम बात यह है कि जो मुलजिम आबद है, इस वाक़े का मरकजी मुलजिम, उसका घर जो है वो बिल्कुल जो है वो इस इलाके के एंड पर है और वहां से मोटरवे जो है वो तकरीबन 1 से 1.25 किलोमीटर के मुसाफत पर वाक़या है, जहां से वो मुलजिम जो है वो फरार हुआ। जबकि अब्बास और वकारुल हसन के घर जो है ये बिल्कुल आबादी के दरमियान में है। यहाँ से 3 किलोमीटर के करीब जो है फासला बनता है जो मोटरवे से है इनका घर। अली इमरान हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है कि वकारुल हसन के बाद अब्बास ने भी खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया है। गिरफ्तारी से पहले उसने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई जिसमें उसका एक कहना था कि वो बेगुनाह है।